सच्चाई रे हो गई खत्म कहानी रे आ जाओ। तो ये थी प्रस्तुति। इसके बाद जैसा कि सर्वांगीण विकास की बात कर रहे थे हम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात कर रहे थे हम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सर्वांगीण विकास में अगर वाक शक्ति अच्छी ना हो, बातचीत अच्छी ना हो, तो किसी भी तरह से समाज में उसे सत्कार नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता है। भाषण एक ऐसी विधा है जिसमें हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और विचार तब व्यक्त होते हैं जब हमारी वाणी सशक्त हो, और भाषण एक ऐसी ही विधा है। तो लीजिए हाज़रीन, आपके समक्ष इसे विद्यालय के विद्यार्थी प्रस्तुत करने जा रहे हैं भाषण। आयुष गुप्ता कक्षा 7वीं गुरुकुल के संदर्भ में आपसे बात करने जा रहे हैं। कृपया जोरदार तालियों से इस बच्चे का सम्मान कीजिएगा, जोरदार तालियों से इसका हौसला बढ़ाइएगा। His Excellency Acharya Devrat Ji, Guest of Honor Mrs. Darshana Devi, the First Lady of Himachal Pradesh, Shri Kulwant Singh Saini Ji, Respected Director Sir, Principal Sir, Teachers, Wardens and Parents. Today is a very auspicious day as our school is going to celebrate its first annual day. Today I am going to present my thoughts on the contribution of the Gurukul system towards education. The term Gurukul usually refers to 3 educational schemes. First, ancient Indian educational system. Second, the system of ideas propounded by Swami Dayanand Saraswati. And third, the Gurukuls as we see them today. Since the ancient educational practices are too remote for us, and the present day, the Gurukuls purportedly follow Swami Dayanand. I'll focus on the concept of Gurukul as seen by Swami Dayanand. The main features of the system are, it is career or certificate oriented co-education. The chief and the most often heard in the argument in the favor of coach system is that intermingling of both sexes during formative years bridges the social and psychological gap and encourages gender distinction. For example, in Australia, 1,544 college students were surveyed. The single-sex students were experienced more and were more confident than who attended coach. This was also true with regards to attitudes, values and behaviors of young men and women. Mixed gender classroom also showed negative effects on the concentration capabilities of both boys and girls. Canada's National Radio CBC, a result of a study about 3 years ago. It was found that boys and girls in single sex grasp academic education more clearly and in shorter time than who attended coach. The concept of idea teacher-student relationship is derived from mother-child relationship. Just as mother protects his womb with complete care and dedication, so does a teacher who formally accepted student. Students constantly receiving training from the teacher as they live side by side. The Acharya was so called because he not only imparted academic education but also extended spiritual and moral values. Students and teachers are not responsible to each other but to the laws of the school. According to Dayanand, an ideal Gurukul should include in its curriculum a wide variety of subjects and the Vedas, which are Swami Dayanand's believed the source of all knowledge. Given the opportunity and financial backing, Gurukul system can be more productive and conducive than the other program can ever have. और अब मैं अपनी बात दुष्यंत कुमार के शब्दों से खत्म करना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी,
पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलनी चाहिए। शर्त लेकिन थी ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ इंग्लिश पे भी बहुत जोर दिया जाता है, और आपने एक दृष्टांत देखा इस बच्चे के माध्यम से, कितनी फ्रीक्वेंटली और कितनी कॉन्फिडेंटली ये अपनी बात को कह रहा था भाषण के माध्यम से। तो लीजिए देवी और सज्जनों, अब आपको लिए चलते हैं नृत्य की दुनिया में, क्योंकि नृत्य अपने आप में एक ऐसी विधा है जिसमें हम एक तरह से साधना की स्थिति में आ जाते हैं, योग की स्थिति में आ जाते हैं, आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, सुख की स्थिति में आ जाते हैं। तो इसी विद्यालय के विद्यार्थी प्रस्तुत करने जा रहे हैं देशभक्ति से ओत-प्रोत ये नृत्य नाटिका आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। है लिए हथियार दुश्मन ताक पर बैठा उधर, और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली। डरते नहीं हथियार से, सर जो उठ जाते झुकते नहीं ललकार से। अब तो घर से निकले बांध कर सर पे कफन, जिंदगी तो अपनों में है, मौत तो अपनी महफिल में है। सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये थी प्रस्तुति नृत्य के माध्यम से। आज इस गुरुकुल के छात्र आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे उस समस्या को। परम पूज्य महामहिम आचार्य महोदय, सम्मान्य अतिथि विद्वान मंडल, वंदनीय मातृशक्ति धर्मानुरागी सज्जनों, मैं आज गुरुकुल के वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर आपके सामने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आशा है आप ध्यानपूर्वक सुने
विदेश में रहना अपना सौभाग्य समझते हैं। इस सब का कारण क्या है? इस सब का मूल कारण है हमारी विकृत शिक्षा प्रणाली। प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य था व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, अर्थात शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक, यहाँ तक कि वैश्विक विकास करना। आज ये उद्देश्य केवल पाठ्य पुस्तकों में सिमट कर रह गया। प्राचीन शिक्षा में चरित्र निर्माण को धनोपार्जन से भी अधिक महत्व प्राप्त था। अतएव क्षीणव्यतः क्षीणवत्र तस्तु हतोहतः की संदेश भावना प्रत्येक नागरिक के मनोमस्तिष्क में पूरित की जाती थी। परंतु आज हमारी सरकार चारित्रिक शिक्षा देने के बजाय मेरे जैसे छोटे छोटे बच्चों को यौन शिक्षा देने की नई नई नीतियां बना रही है। अपने महापुरुषों के गौरव ज्ञान को भगवाकरण का नाम देकर उसका उपहास किया जाता है। गुरु शिष्य का वह प्राचीन पवित्र संबंध आज स्वप्न बनकर रह गए हैं। आजकल शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य केवल धनोपार्जन रह गए है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में प्रतिभा पलायन की समस्या दिनों दिन विकट रूप धारण करती जा रही है। वह श्री राम की उस प्रेरणा को भुला चुका है जो उन्होंने लक्ष्मण के माध्यम से संपूर्ण आर्यव्रत को दी थी। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोस्ते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सज्जनों, प्राचीन काल में इन समस्याओं की संभावना नहीं थी, क्योंकि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हमारी ऋषि मुनियों के गहन चिंतन से निर्मित वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है। इसकी उत्तम दिनचर्या, स्वानुशासन, आत्मनिर्भरता, गुरु शिष्य संबंध, राष्ट्र प्रेम भावना आदि अनेक गुण आज भी उतने ही प्रासंगिक एवं उपयोगी है जितने प्राचीन काल में थे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद जैसे भगवत सदृश महापुरुषों ने इसी शिक्षा में अध्ययन कर विश्व में मानवता के उच्च मानदंड स्थापित किए। सज्जनों, आज देश को उच्च डिग्रीधारी प्रतिभावान व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रतिभाशाली एवं डिग्रीधारी व्यक्तियों की कभी तो आतंकवादी संगठनों में भी नहीं। परंतु अब थोड़ा विचार करें कि उस शिक्षा का क्या लाभ, जिसको प्राप्त करने के बाद वे लोग निर्दोष लोगों की हत्या रूपी जघन्य अपराधों को करने में किंचित भी संकोच नहीं करते। इसलिए आज राष्ट्र को चरित्रवान, धैर्यशाली एवं बुद्धिमान नागरिकों की आवश्यकता है, जो मां भारती के सिंह को लौटाकर उसे पुनः उसी प्राचीन गरिमा पद पर आसीन करने में समर्थ हो और भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक फिर से उसी आत्मविश्वास के साथ महर्षि मनु के उद्घोष को दोहरा सके। एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। उपस्थित सज्जनों, यदि आप पूर्वक सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप राष्ट्र को पुनः उसे प्रतिष्ठित विश्व गुरु के पद पर आसीन देखना चाहते हैं, यदि आप अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, तो आपको अवश्य गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की शरण लेनी चाहिए और सरकार को भी आधुनिक शिक्षा गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के माध्यम से ही दिए जाने के प्रयास करने चाहिए। अपनी संस्कृति एवं सभ्यता की सुरक्षा तथा समृद्ध राष्ट्र एवं सुसभ्य नागरिक निर्माण एकमात्र मार्ग यही है और वह यही हो सकता है। सत शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा। नाना पंथं विद्यते अयनाय इतिशम्। नमस्कार। आर्य समाज की बात करता है, उसके हित की बात करता है। आज हमारे समाज में एक समस्या विकराल रूप धारण किए हुए है और ये समस्या प्रांत की समस्या नहीं, देश की समस्या नहीं, विश्व की समस्या बनकर रह रही है। पानी की समस्या, इस समस्या को उजागर करने जा रहे हैं एक संदेश रूप में। इसी विद्यालय के विद्यार्थी नाटक Big bodies of food. Big bodies
नहीं शीशा हूं। हश्र क्या होगा? मेरी जिंदगी तो यारो फिर किसी चट्टान से है। मेरे वजूद का रिश्ता तो उस आसमान से है। ना जाने क्यों उन्हें शिकवा आज मेरी उड़ान से है। Que